welcome to We Learn. This is session 2, part B of technology transfer. In today's session, we are going to discuss about these topics, that is life cycle approach for planning and implementing a technology transfer project. Under this topic, we are going to discuss various stages, like the first one is stage 1, that is identifying CVD enhancing technologies. Then we are going to discuss about stage 2, that is focused technology search. Then stage 3, that is negotiation. After that we are going to discuss the stage 4, that is preparing a technology transfer project implementation plan. After that we are going to discuss about the stage 5, that is implementing technology transfer. And at last we are going to discuss about stage 6, that is technology transfer impact assessment. So first of all, let us discuss about life cycle approach for planning and implementing a technology transfer project. Basically, the life cycle approach for planning and implementing a technology transfer project is based on the stage gate structure developed by Jagoda and Ramanathan for developing a systematic approach for planning and managing ITT. जो ये लाइफ साइकिल अप्रोच था प्लानिंग का, ये इसको हम स्टेज गेट स्ट्रक्चर बोलते थे, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय जगोडा एंड रामनाथन इन 2005। 2005 में ये डेवलप किया था जगोडा एंड रामनाथन ने। इसको हम स्टेज गेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर अ सिस्टमेटिक प्लानिंग अप्रोच। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड एक्सपोजिटरी ईज, henceforth दिस मॉडल विल बी रेफर्ड टू एज द TTLC। बाद में इस मॉडल का जो शॉर्ट नेम था वो क्या डिसाइड किया गया, TTLC, दैट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइफ साइकिल अप्रोच। So the next thing related to the TTLC approach is that it takes a holistic view of a TT project from its conception right up to its conclusion, and is based on the recognition of the fact that a life cycle of a TT project can be looked at from a process perspective as consisting of 6 major stages as follows. TTLC approach को हम as a process treat करते थे because it has 7 stages. Basically it has 6 major stages which are as follows. As you can see here, the first one is identifying the technology needed and making a business case to obtain corporate approval. That means सबसे पहले यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते थे टेक्नोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करते थे जिसकी हमें यहाँ पर नीड है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वी ऑब्टेन ए कॉर्पोरेट अप्रूवल। आइडेंटिफाई करने के बाद कॉर्पोरेट के थ्रू उसको हम अप्रूव कराते थे। देन द नेक्स्ट फेज इज सर्चिंग फॉर पॉसिबल टेक्नोलॉजी सोर्सेज एंड असेसिंग ऑफर्स। आफ्टर दैट मार्केट में हम सर्च करते हैं टेक्नोलॉजी सोर्सेज को, सो दैट वी कैन at the time of need we can acquire those resources from these industries, or you can say enterprises, and then assessing the offers provided by these sources. Then the next phase is negotiating with the shortlisted suppliers and finalizing the deal. एक लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद सप्लायर्स की या यू कैन से सोर्सेज की हम वहाँ पर नेगोशिएशन परफॉर्म करते थे। दैट मीन्स जो सप्लायर्स हैं उनके साथ नेगोशिएट करते थे, अप्रोप्रिएट कॉस्ट या प्राइस पर हम प्राइस को हम डिसाइड करते थे। सो आफ्टर नेगोशिएटिंग with the shortlisted suppliers we finalize the deal. After that the next phase is preparing a TT implementation plan. फिर बाद में हम क्या करते थे, जो हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लान है उसको हम इम्प्लीमेंट करते थे। देन इम्प्लीमेंटिंग एंड एसिमुलेटिंग, इसमें फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद एसिमुलेशन परफॉर्म होता है। आफ्टर दैट एट लास्ट स्टेप एसेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द TT प्रोजेक्ट। जो हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट क्रिएट किया, डेवलप किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके क्या इम्पैक्ट हुआ हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर, उसको हम यहाँ पर लास्ट फेज में एसेस करते हैं। Now let us discuss about the stage 1, that is identifying CVD enhancing technologies. So all enterprises, whether they are large firms or SMEs,
can compete effectively only on the basis of customer value creation. So customer value may be defined as a function of quality, delivery, flexibility, convenience and cost. So यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कस्टमर के बारे में. दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एग्जिस्ट करती है, सो एज टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू फ्रॉम द मार्केट. तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो होती है यहाँ पर वो ये होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए. इसको हम कैसे कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी, बाय प्रोवाइडिंग डिलीवरी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस. Then the next thing is quality represents how well a specific good or service meet customers expectations. क्वालिटी क्या शो करती है? क्वालिटी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर रहा है या उसकी एक्सपेक्टेशंस पर कितना फिट बैठता है. सो स्पीड डिस्क्राइब्स द टाइम नीडेड टू डिज़ाइन, प्रोड्यूस एंड डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज एज कैरेक्टराइज्ड बाय डिटर्मिनेंट्स सच एज साइकिल टाइम एंड स्पीड टू मार्केट. सिमिलरली जो स्पीड है वो शो करती है कि कितना टाइम लगा डिज़ाइन करने में किसी प्रोडक्ट को, प्रोड्यूस करने में और डिलीवरी में. द नेक्स्ट थिंग हेयर इज फ्लेक्सिबिलिटी. सो फ्लेक्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट्स हाउ easily and quickly the firm can modify goods or services to meet customer needs in terms of aspects such as options and extent of customization possible. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग कितना अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है, चेंज कर सकती है, ये शो करता है उसका फ्लेक्सिबिलिटी बिहेवियर. The next thing in stage 1 is creating convenience for the customer implies not only speed of service but also self-service, process visibility and easy to use, streamlined, consistent and reliable customer service. यहाँ पर जो हमारा मेन मोटिव होता है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, उसको कन्वीनियंस प्रोवाइड कराना होता है. हम यहाँ पर जो कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू कर सकते हैं, लाइक बाय स्पीडिंग अप दी सर्विस, by self-service, by process visibility, easy to use, consistent. So all these are the factors by which we can provide convenience to our customers. Lastly, cost refers to all objective and subjective costs that the customer incurs to acquire, use and dispose of the good or services and includes dimensions such as discounts, rebates and incentives. लास्ट पॉइंट इसमें क्या आता है? लास्टली हम क्या करते हैं, इसमें कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को, रीबेट प्रोवाइड कराते हैं, कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराते हैं. दिस इज बेसिकली डन टू गेट देयर, you can say to get their interest in your products, to attract them. Now here we are going to discuss about gate 1, that is confirming identified technologies. So gate 1 is a critical but supportive screen. The decision makers, usually a top management team, develop a set of must meet criteria to review the proposal. यहाँ पर गेट 1 में हम क्या करते थे, जो बेसिकली ये गेट 1 का जो टास्क है ये डिसीजन मेकर्स कंट्रोल करते हैं. सो they here just provide a critical but supportive screen. That means here they decide, here they develop a plan, a must meet criteria. That means at anyhow you have to satisfy these conditions. So these criteria could include, like first one here is strategic alignment. यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं उनको हम नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. देन प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एंड रिसोर्सेज कंसिडरेशंस. प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी मीन्स प्रोजेक्ट जो है हमारा, कोई भी जिस प्रोजेक्ट पर कंपनी वर्क कर रही है वो टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए. देन कम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अपॉर्चुनिटी. दैट मीन्स देयर शुड बी इनफ अपॉर्चुनिटीज इन अ मार्केट. देन मार्केट अट्रैक्टिवनेस. दैट मीन्स यू हैव टू अट्रैक्ट द customers to your company according to the need to satisfy the customers. The next point is regulatory, legal and policy factors. That means यहाँ पर proper policy factors decide किए जाते हैं to increase the growth of a company. So here proper benefits are given to customers to interact them. After that, the next point is
sales force and customer reaction to the proposed technology. Now let us discuss about the stage 2, that is focused technology search. So this is probably the most important stage where detailed investigation is carried out by the TTSC. So it is here that a strong business case for the technology transfer is built. This includes specifying in detail the following. यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करते हैं, हमारी जो प्रोसेस है TTSC की उससे रिलेटेड हम यहाँ पर सर्च operations perform करते हैं. It basically includes certain detailed steps which are as follows. Here the first one is how the technology sought is expected to enhance customer value by influencing the CVDs. यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है हमारी वो कैसे हमारी कस्टमर वैल्यू को इन्हांस कर सकती है, उन फैक्टर्स को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं. देन what components of technology are needed like hardware, skills, information and organizational arrangements. किन किन कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी के किन किन एस्पेक्ट्स को हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द बेनिफिट ऑफ enterprise. Then comes the next point, that is the extent to which the abilities to use the technology are available in-house and what gaps have to be bridged. That means सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर्स को जो हमें टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है इन हाउस. दैट मीन्स कंपनी के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं और कौन कौन सी नहीं हैं, उनको हम यहाँ पर उस गैप को फिल करते हैं. देन द रिसोर्स कमिटमेंट्स नीडेड एंड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स. दैट मीन्स जो रिसोर्सेज से रिलेटेड हमने कमिटमेंट्स किए थे उनको हम यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं और जो हमारे बेनिफिट्स हैं, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं, उनको गेन करते हैं. देन द नेक्स्ट स्टेप इज प्रायोरिटाइज्ड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सप्लायर्स फॉर द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन देयर बिजनेस स्ट्रेटजी. इसमें हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं सप्लायर्स की अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी. देन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग TT प्रोजेक्ट्स, पास्ट परफॉर्मेंस एंड क्रॉस कल्चर एक्सपर्टाइज. यहाँ पर जो हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स पे करते हैं, लाइक their future aspects, their experience, their technological capabilities. So these are the aspects on the basis of which we characterize the suppliers. Then the next step is competitive analysis to assess the impact of the technology sought on competitiveness. competitive analysis हम यहाँ पर करते हैं, ये चेक करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, वो मार्केट में किस लेवल पर है, how much competitive it is according to other competitors which are available in a market. Now comes the gate 2, that is technology and supplier selection. So this is the final gate prior to the formal negotiation and launch stage where the project can be killed before it enters a heavy spending phase. तो ये फाइनल गेट होता है हमारे फॉर्मल नेगोशिएशन से पहले, लॉन्च से पहले. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम किसी प्रोजेक्ट को प्रॉपरली यहाँ पर चेक करते हैं, अगर उसमें कुछ कमी होती है तो उसे वहीं पर स्टॉप किया जा सकता है. सो दिस गेट गिव्स द गो अहेड फॉर अ हैवी स्पेंड. सो गेट 2 critically examines the analysis of stage 2 and rechecks against the major criteria used in gate 1. गेट 1 में जो क्राइटेरिया हमने यूज़ किया था उसके अगेंस्ट यहाँ पर हम परफॉर्मेंस की को मेजर करते हैं, उसको चेक करते हैं, क्राइटेरिया को चेक करते हैं. सो द फॉलोइंग स्टेप्स नीडेड टू बी फॉलोड वेरी केयरफुली एट दिस गेट. दैट मीन्स first of all suggestions with regard to technology choice, components of technology needed, then capability gaps to be bridged, resource commitments needed, expected benefits and supplier profile ratings are critically examined. यहाँ पर हम क्या क्या एग्जामाइन करते हैं, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी की जिस टेक्नोलॉजी की हमको ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. देन आफ्टर दैट वी फिल अप द गैप्स. देन रिसोर्स कमिटमेंट्स. फिर उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, हम प्रोफाइल रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्रिटिकल ऑपरेशन. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द टेक्नोलॉजी विल बी असेस्ड very rigorously using techno-economic
सोशो एंड पॉलिटिको लीगल फैक्टर्स। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को एसेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, लाइक टेक्नो इकोनॉमिक हो सकता है, सोशो हो सकता है, दैट मीन्स सोसाइटी के अकॉर्डिंग, देन पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। Now comes the next point, that is the preferred supplier ranking will be reassessed rigorously based on strategic fit and process support capability and may be modified from the ranking proposed in stage 2। यहाँ पर फिर से हम रीअसेस करते हैं जो हमारी हमने रैंकिंग प्रोवाइड की अपने सप्लायर्स को, उसको यहाँ पर फिर से चेक किया जाता है। Then comes the next point, that is the financial analysis, that is DCF is rechecked very rigorously here। स्टेज 2 में, गेट 2 में इसमें हम क्या करते हैं, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट the TTSC may have to revise the analysis in the light of critical evaluation and submit the new analysis for further evaluation। यहाँ पर हम लास्ट पेज में TTSC में क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं एनालिसिस को, फिर से चेक करते हैं, जो हमारा एनालिसिस ऑपरेशन होता है उसको फिर से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर कुछ हम क्रिटिकल इवेल्युएशंस परफॉर्म करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यू एनालिसिस है उसको फर्दर इवेल्युएशन के लिए सबमिट करते हैं। नाउ कम्स द स्टेज 3, दैट इज नेगोशिएशन। So this is a critical stage where the TTSC now negotiates with the shortlisted suppliers। A critical issue in TT negotiation is the valuation of the technology to be transferred। स्टेज 3 में नेगोशिएशन में हम क्या करते हैं, हमने जो कस्टमर्स की लिस्ट प्रिपेयर की, कस्टमर्स को सिलेक्ट किया, उनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया, हम यहाँ पर उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं। दैट मीन्स वी ट्राई टू सेट अप, you can say you are trying to satisfy on a cost which is appropriate for both the parties। So the extent to which both parties can influence price depends on their respective bargaining power। दोनों पार्टीज में जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जिस पार्टी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उसी के बेसिस पर प्राइस डिपेंड होता है, डिसाइड होता है। सो द ट्रांसफरर्स पावर अराइजेज out of the resources possessed such as ownership of a desired technology, brand name, reputation, management expertise, capital and international market access। यहाँ पर जो हम पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट मीन्स जो रेट डिसाइड होता है, जो प्राइस डिसाइड होता है, वो सोर्सेज के थ्रू भी होता है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उनके थ्रू भी डिसाइड होता है। लाइक अगर अच्छी कंपनी है, ब्रांड नेम अच्छा है, तो कॉस्ट ज़्यादा होती है रेपुटेशन के बेसिस पर, मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज के बेसिस पर, कैपिटल के बेसिस पर और इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस के बेसिस पर। द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज ट्रांसफरी पावर ऑफन टेंड्स टू हैव इट्स रूट इन लोकल नॉलेज एंड नेटवर्क्स, एक्सेस टू लोकल मार्केट्स, रॉ मटेरियल्स एंड लो कॉस्ट लेबर एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस। यहाँ पर जो ट्रांसफरी की पावर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की हेल्प से होती है। लाइक नेटवर्क की हेल्प से हो सकती है, मार्केट में उसकी एक्सेस कितनी है उसके बेसिस पर हो सकती है, रॉ मटेरियल्स कितना अवेलेबल है, या कॉस्ट अगर लेबर की लो है तो उसके बेसिस पर भी हो सकता है। सो द फॉलोइंग एक्टिविटीज नीड टू बी कैरी आउट एट दिस स्टेज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीइंग अपॉन अ बेसिस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड रीचिंग एग्रीमेंट on issues related to payments and intellectual property protection। Both short term and strategic benefits have to be examined। यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स को एग्जामाइन करना होता है, एग्रीमेंट्स को, यहाँ पर एग्रीमेंट्स या इश्यूज को सॉल्व करना होता है, पेमेंट से रिलेटेड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यहाँ पर हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। Now the next point is delineation of each party's contribution and responsibilities towards the TT project। So this is the next step। यहाँ पर delineation perform होता है हर एक पार्टी के थ्रू। Then discussion of issues and methods related to transfer of codified and uncodified aspects of technology including training। यहाँ पर डिस्कशन फिर बाद में हम परफॉर्म करते हैं। डिस्कशन जो होता है यहाँ पर वो होता है बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड एस्पेक्ट। जो हमारे कोडिफाइड एस्पेक्ट्स हैं या अनकोडिफाइड एस्पेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कशन परफॉर्म करते हैं, इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इश्यूज़ हो सकते हैं लाइक ट्रेनिंग इश्यूज़,
Now this is gate 3, that is finalizing and approving agreement. So this gate is operationalized once the negotiations have reached a satisfactory level and the parties express the desire to finalize the agreement through the drawing up a legal agreement. यहाँ पर गेट 3 में क्या होता है, सिलेक्शन करने के बाद कस्टम जो हमारी लिस्ट थी हमने जो सिलेक्ट किए थे, फाइनलाइज किए थे, जो आर्ग्यूमेंट्स एग्रीमेंट्स हमने डिस्कस किए थे अपने पार्टीज के साथ, उनको हम यहाँ पर फाइनल करते हैं. सो दिस गेट विल क्रिटिकली इवेल्युएट द फॉलोइंग, दैट इज फर्स्ट वन हियर इज द कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द डिटेल्ड ट्रांसफर एग्रीमेंट. जो हमारा डिटेल्ड ट्रांसफर एग्रीमेंट है उसको हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवनेस प्रोवाइड कराते हैं. देन द एडिकेसी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन अरेंजमेंट. यहाँ पर जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपर अरेंजमेंट्स करते हैं. देन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. देन इन द नेक्स्ट पॉइंट द सूटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पेमेंट अमाउंट्स, प्रोसीजर्स एंड टाइम फ्रेम्स. यहाँ पर डिसाइड किया जाता है जो प्रॉपर सूटेबल टाइम होगा, अफोर्डेबल टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगी, अमाउंट्स से रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड एंड टाइम फ्रेम्स से रिलेटेड. नाउ कम्स द स्टेज 4, दैट इज preparing a technology transfer project implementation plan. So at the beginning of this stage, a transferor of technology would have been chosen, and since the creation of sound organizational infrastructure is critical to the implementation of TT, this stage focuses on making organizational arrangements to receive the technology. यहाँ पर जो सबसे मेन फोकस होता है वो ट्रांसफरर के ऊपर होता है, दैट इज ट्रांसफरर ऑफ टेक्नोलॉजी वुड हैव बीन चूजन. यहाँ पर उसको चूज़ किया जाता है, और जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है वो इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पर होता है. यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल के अरेंजमेंट्स पर होता है टू रिसीव दी टेक्नोलॉजी. किसी टेक्नोलॉजी को रिसीव करना है, हमें गेन करना है, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम अरेंज करेंगे. हेयर वी कंसिडर दोज फैक्टर्स. सो द मेन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दिस स्टेज आर द फॉलोइंग. यहाँ पर जो हम मेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. लाइक फर्स्ट वन इज identification of changes to be made to the organizational structure and work design based on an understanding of the transfer components. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उन पॉइंट्स को जिनके ऊपर हमें वर्कआउट करना है, चेंज करने हैं और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करना है. देन वर्क डिज़ाइन बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांसफर कंपोनेंट्स. यहाँ पर जो हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, जो वर्क डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, वो हमारा मेन बेसिस होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमने ट्रांसफ़र करना है, जिन कंपोनेंट्स को उनको अंडरस्टैंड करना होता है. एंड ओनली देन वी कैन डिज़ाइन organizational structure. Then the next point is identification of changes to be made in the knowledge management system and policy regimes to accommodate the new technology. फिर हम यहाँ पर उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हमें परफॉर्म करना है किसी भी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में. देन development of pragmatic training and education schedules for the workforce that matches with the components to be transferred. फिर यहाँ पर हम डेवलपमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने प्रैग्मेटिक ट्रेनिंग का. दैट मीन्स हम यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, एजुकेशन शेड्यूल्स परफॉर्म करते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ मेजर्स टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसफर पर्सनल. यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए जाते हैं. बेसिकली दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफाइंड फॉर अ प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसफर पर्सनल्स. देन कम्स द स्टेज 5, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस विच आर एज फॉलोज. सो हेयर द फर्स्ट वन इज identification of changes to be made to the product or process to suit local conditions and making the necessary adaptations. यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उन चेंजेस को जिनको कि हमें ज़रूरत है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या प्रोसेस से रिलेटेड, एंड मेकिंग द नेसेसरी अडेप्टेशंस. और चेंज करने के बाद अगर हमें नेसेसरी अडेप्टेशंस परफॉर्म करनी होती हैं, दैट मीन्स हमें अडेप्ट होना होता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, तो वो ऑपरेशंस हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं.
Then recruitment and selection of personnel not already available within the organization and conducting training programs for existing staff. हम रिक्रूटमेंट यहाँ पर करते हैं, सिलेक्शन करते हैं न्यू स्टाफ का जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, और जो स्टाफ हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है उसको हम यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड रेम्यूनरेशन प्लान टू फैसिलिटेट चेंज मैनेजमेंट. यहाँ पर हम प्रॉपर रेम्यूनरेशन परफॉर्म करते हैं जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम मोटिवेट कर सकें. देन कम्स द गेट 4 दैट इज अप्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन प्लान. So at this gate, the following aspects will be carefully synchronized. That is, first of all, whether agreement has been reached with the transfer with respect to the schedule. शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्रीमेंट था वो ट्रांसफ़र तक पहुंचा या नहीं वो हम यहाँ पर चेक करते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एडिकेसी ऑफ द ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स. दैट मीन्स कितने प्रॉपर वे में जो हमारे ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स हैं वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए हैं वो हम यहाँ पर चेक करते हैं. देन एडिकेसी ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन प्रॉपरली हुए हैं या नहीं वो यहाँ पर इस स्टेज में हम चेक करते हैं. देन इन द नेक्स्ट फेज दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन मेजर्स. हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी. देन ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज. दैट मीन्स हेयर वी हैव टू डिसाइड द timeline for the operations which we are going to carry out in a organization. Then quality assurance procedures. That means here we are going to decide some operations, certain activities which will decide a proper quality of a product. Then payment schedules. Now the next point here is formulation of arrangements with ancillary suppliers of materials, parts and service based on a make versus buy analysis. हम यहाँ पर फॉर्मुलेशन करते हैं अपने अरेंजमेंट्स का अकॉर्डिंग टू दी मेक एंड बाय एनालिसिस. दैट मीन्स क्रिएट करना और खरीदना, इन बेसिस पर हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. देन मेंटेनिंग लिंक्स विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू कीप ट्रैक ऑफ पॉलिसी चेंजेस. जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ लिंक्स मेंटेन करके रखते हैं यहाँ पर ताकि जो भी पॉलिसीज़ में चेंज करना है वो अकॉर्डिंग टू द नीड हम ईजिली कर सकें. देन कमीशनिंग द ट्रांसफर्ड टेक्नोलॉजी ऑन और बिफोर शेड्यूल. जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकें टाइम पर या उससे पहले. नाउ गेट 5 दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट. So the audit may focus on the evaluation of project implementation with respect to critical factors such as. यहाँ पर जो ऑडिट है उसका जो मेन फोकस होता है वो इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट पर होता है, दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन पर होता है. और यहाँ पर जो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं वो हैं लाइक फर्स्ट वन इज कमिटमेंट डिस्प्लेड, जो कमिटमेंट है. देन कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सपीरियंस, जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं. देन टाइम फ्रेम्स, दैट इज टाइम ड्यूरेशन. देन कॉस्ट इनकर्ड, दैट मीन्स जो हमने कॉस्ट अप्लाई की, हमने जो कॉस्ट अचीव की, जो हमने गेन किया मार्केट से. देन क्वालिटी अचीव्ड, जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है. देन एक्सटेंट ऑफ लर्निंग एंड स्किल अपग्रेडिंग, किस लेवल तक हमने अपने आप को इम्प्रूव किया है, लर्न किया है और अपग्रेड किया है. देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज न्यू नॉलेज जनरेटेड. एंड एट लास्ट कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, कितने प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन परफॉर्म हुआ है या कर सकते हैं. इन दिस फैक्टर वी आर गोइंग टू जज दैट. देन कम्स द स्टेज 6 दैट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट. So assessing the impact of a TT project is difficult because it is a complex process with multiple outcomes that could emerge throughout the life of a project. Also, the intangible benefits of a TT project are difficult to evaluate. यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, assess करते हैं जो भी हमने TT प्रोजेक्ट डेवलप किया था, इम्प्लीमेंट किया था उसको ऑर्गेनाइजेशन में, उसके क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं. तो यहाँ पर इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी कंसीडर किए जाते हैं टू इवेलुएट द प्रोजेक्ट. देन however a well structured impact assessment could be extremely beneficial and the impacts need to be assessed from customer, market, financial, technological and organizational perspectives. The following activities are proposed for this last stage.
यहाँ पर जो हम असेसमेंट करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर करते हैं। ये क्राइटेरिया हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल perspective. Now the next thing here is development of a balanced scorecard, that is BSC, approaches to assess impacts. यहाँ पर हम एक बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि इजीली हम असेस कर सकें हमारे इम्पैक्ट्स को, जो हमारे इम्पैक्ट्स हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन पर किसी भी पॉलिसी के, प्रोसीजर के, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के, उनको हम यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Then comes the identification of the variances, that is between actual and expected outcomes, and the formulation of organizational corrective measures. यहाँ पर फिर हम चेक करते हैं कि हमारे जो वेरिएंसेस हैं, दैट मीन्स जो डिफरेंस आए हैं हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम में या एक्चुअल आउटकम में, वो कितना डिफरेंस है. देन एग्जामिनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग द ट्रांसफर्ड टेक्नोलॉजी. फिर यहाँ पर हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को. देन कम्स द गेट 6, दैट इज डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर पोस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्टिविटीज. So at this gate, important decisions have to be taken as to whether to continue to use the technology by improving it incrementally or go for another TT project. यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, लाइक अगर कोई टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ चेंजेस करके, इंक्रीमेंट करके उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें दूसरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट को चूज़ करना है. So successful TT projects can lead to strong and long partnership between the transferor and the transferee. जो सक्सेसफुल TT प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी हेल्प से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप क्रिएट होती है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में. एंड न्यू प्रोजेक्ट्स कुड बी इनिशिएटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज. फिर उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कैरी आउट हो सकते हैं इन अ डिफरेंट डिफरेंट मैनर. So at this gate, guidelines may be formulated based on the experience gained at all the previous stages and gates for post technology transfer activities. यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हम क्रिएट करते हैं. जो गाइडलाइंस हम क्रिएट करते हैं वो एक्सपीरियंस बेसिस पर करते हैं. लाइक हमने अभी तक गेट 5 डिस्कस किए हैं, तो उन गेट्स के बेसिस पर, उन एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ डिफाइन करते हैं. नाउ दीज एक्टिविटीज़ आर, फर्स्ट वन इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट. दैट मीन्स कोई भी जो नया प्रोजेक्ट होगा उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं. देन इंटरनल डेवलपमेंट, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज. हियर वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट. देन अ मिक्स ऑफ बोथ इन पार्टनरशिप विद द ट्रांसफरर. ट्रांसफरर के साथ हम यहाँ पर मिक्स पार्टनरशिप करते हैं. देन एट द एंड ऑफ दिस सेशन there is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, discuss technology transfer process issues. Then the next question is, describe corporate capability issues. So this is the end of today's session. Thank you.